ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد حزب اللہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ اسرائیل پر راکٹ داغ دیے، جس کے بعد بیروت اور تہران میں دھماکے سنائی دیے گئے۔ لبنان کے کئی علاقوں میں انخلا کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ ٹرمپ نے ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت ختم کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ عبوری قیادت سے بات چیت کا عندیہ دے دیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر جارحانہ حملے کے بعد سے خطے میں صورتحال کشیدہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کی نہ صرف سیاسی اور عسکری قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ شہری مقامات پر بھی بم برسائے جا رہے ہیں، جبکہ ایران کی طرف خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں اور اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ میں برطانیہ بھی شامل ہو گیا۔ دنیا بھر میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ امریکی اسرائیلی جارحیت کے خلاف بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آج جنگ کا تیسرا روز ہے اور ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کی عبوری قیادت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، ورنہ حملے جاری رہیں گے۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا۔ اپنے ایک بیان میں جنرل امیر حاتمی نے کہا، ایران کے بیٹے دفاعی وطن سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی پوری طاقت سے جواب دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے طے اور مشق شدہ منصوبے کے تحت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ ڈرون، فضائی دفاع اور نیوی بھرپور کوارڈینیشن سے کام کر رہی ہے۔ آپ کو بتائیں، کویت میں امریکی طیارہ F-15 گر کر تباہ ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق طیارے کو ممکنہ طور پر مار گرایا گیا ہے۔ امریکی F-15 کا پائلٹ ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ پائلٹ کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترک میڈیا کے مطابق طیارہ معمول کی پرواز پر تھا کہ دوران پرواز حادثے کا شکار ہو گیا، زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کی وجوہات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکیں، تاہم متعلقہ حکام کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کویت میں صبح سے سائرن بج رہے ہیں۔ کویت نے ایرانی ڈرون تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی 48 اہم شخصیات کو مار دیا۔ پوری ایرانی لیڈرشپ ماری جا چکی، بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ویڈیو خطاب میں کہا، پاسدارانہ انقلاب کی تنصیبات ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، 9 بحری جہاز ایرانی بحریے کی عمارت کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کے 48 اہم شخصیات کو مار دیا، ملٹری کمان مکمل ختم، لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ پاسدارانہ انقلاب، ایرانی فوج پولیس ہتھیار ڈال دے تو استثناء مل سکتا ہے، ہتھیار نہ ڈالے تو موت کا سامنا کریں۔ امریکی صدر نے کہا، اہداف کے حصول تک فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ امریکیوں کی ہلاکتوں کا امکان، امریکیوں کی ہلاکتوں کا بدلہ لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، امریکہ ایرانی شہریوں کے ساتھ ہے، ایرانی عوام اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا ملک واپس لیں۔ اب آپ کو بتائیں، ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ملک میں عبوری قیادت کونسل قائم کر دی گئی ہے۔ آیت اللہ علی رضا عرافی کو قیادت کونسل کا فقیہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قیادت کونسل عارضی طور پر سپریم لیڈر کے فرائض انجام دے گی۔ علی رضا عرافی ایرانی سپریم لیڈر کے فرائض انجام دینے والی عبور کونسل کے رکن مقرر کر دیے گئے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ 3 رکنی کونسل میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ مجلس خیبرگان رہبری کی جانب سے نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے تک یہ کونسل رہبر کے فرائض انجام دے گی۔ 50 روز میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا جائے گا۔
सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत का इंतकाम ईरान का जायज़ हक़ और फ़र्ज़ है। इंतकाम का फ़र्ज़ अदा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों के बाद ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पहला बयान। कहा, आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है। हम दुश्मनों के ठिकानों सलाहियतों को तबाह करके मायूस करेंगे। दुश्मन के मंसूबे का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। सुप्रीम लीडर के नक्श कदम पर चलते रहें। ईरान की मुसल्लह फ़ौज दुश्मनों की फ़ौजी अड्डों को तबाह करती रहेगी। मुसलमान हर महाज पर मुत्तहिद होकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने भारत पर जवाबी हमला कर दिया। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल एबीपी न्यूज़ को हैक कर लिया। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने भारतीय चैनल एबीपी न्यूज़ को हैक करके उस पर पाकिस्तानी फौज के मवाद चला दिए। भारतीय चैनल एबीपी न्यूज़ पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के इक़्तिसाबात भी नशर किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर अवाम ने इत्तेहाद और यगानगत के अज़्म का इयादा करते हुए ईरान पर हालिया हमलों की मज़म्मत की है। शहरियों ने अवाम से पुरअमन रहने, बाहिमी इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की। डेरा इस्माइल खान में शहरियों का कहना है कि वो ईरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। मुज़ाहिरीन ने वाज़ेह किया, तोड़फोड़ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने से अपने ही मुल्क को नुकसान होगा। अमन व अमान हर सूरत बरकरार रखा जाए। क्रम में शहरियों ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक़ है, ताहम किसी सूरत इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। उनका कहना था कि दुश्मन अनासर मुल्क में इत्तेहाद को कमज़ोर करना चाहते हैं, जिसे नाकाम बनाना ज़रूरी है। चित्राल के अवाम ने आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो ईरानी अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। शहरियों ने जोर दिया, जज्बात में आकर ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। सब्र का मुजाहरा करते हुए इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब कराची में मुमकिन एहतजाज और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शहर की मुतादिद अहम शाहराहों को कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। अमरीकी काउंसिल खाने जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। PIDC चौक से MT खान रोड सुल्तानाबाद जाने वाली सड़क पर कंटेनर्स रखकर आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। इसी तरह PIDC चौक से ज़ियाउद्दीन रोड CM हाउस जाने वाली सड़क भी बंद कर दी गई। टावर से माई कोलाची जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया, जबकि बोर्ड बेसिन से माई कोलाची जाने वाली शाहराह पर भी रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक रोक दी गई। दूसरी जानिब चौराहे फैसल पर FTC के करीब आम ट्रैफिक के लिए रास्ता बंद कर दिया गया। FTC से मेट्रोपोल जाने वाली सड़क भी रुकावटें लगाकर सील कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि चौराहे फैसल FTC आने वाले ट्रैफिक को गोरा कब्रिस्तान से यू टर्न लेकर सदर की जानिब मोड़ा जा रहा है ताकि मुतबादिल रास्ता फराहम किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर इंतहाई अफसोस है। मुसल्लमा उसूल है कि सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत को निशाना नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत ईरानी अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। अमरीकी और इसराइली हमले में आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बायस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूस का दौरा मुलतवी किया। इस दौरे पर वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह के वफ़द ने भी मॉस्को जाना था। दौरे की नई तारीख का अब फैसला बाहिमी मुशावरत के बाद किया जाएगा। उधर पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इस इक़दाम के तहत हर किस्म के इज्तिमात, जुलूसों और मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में खदशा जाहिर किया गया कि बाज़ अवामी इज्तिमात दहशतगर्दी का हदफ बन सकते हैं, जिसके बायस ये फैसला किया गया शरपसंद अनासर मखसूस मजहबी शख्सियात को निशाना बनाकर फ़िरक़ा वाराना कशीदगी और बदअमनी को हवा दे सकते हैं। हुकूमत का कहना है मुमकिन कशीदगी और अमन आमा में खलल के खदशात के पेश नज़र ये एहतियाती इक़दाम किए गए हैं ताकि सूबे में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, रेड जोन, डिप्लोमेटिक एनक्लेव और दीगर इलाकों में अमन आमा की सूरत हाल का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुद मुजाहिरीन के दरमियान पहुँच गए। मोहसिन नकवी की मुजाहिरीन को पुरअमन रहने की अपील, कहा हम सब गमज़दा हैं, सब्र तहम्मुल का दामन ना छोड़ें। मुतल्लिका इंतज़ामिया को फूल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने के अहकामात भी दिए। बोले पुरअमन एहतजाज हर एक का हक़ है, एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की क़तन इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी फ़ौज की अफ़गानिस्तान में मौसर जवाबी कार्रवाई, अब तक 415 अफ़गान तालिबान हलाक और 580 ज़ख्मी हो चुके हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम, कहा अफ़गान तालिबान की 182 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, 31 चेक पोस्टें पर कब्जा कर लिया गया है। अफ़गान तालिबान के 115 टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान के 40 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तरीके से निशाना बनाया गया है। अफगान तालिबान की हालिया इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ पाक फौज के ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ को आज़ाद कश्मीर और मुल्क भर के शहरियों ने भरपूर पसीराई दी। शहरियों ने फ़ौज पाकिस्तान की कार्रवाइयों को सराहते हुए कहा पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ बिल्कुल दुरुस्त रद्द अमल दिया, दुश्मन के कलकमा तक कार्रवाई बंद नहीं होनी चाहिए। शहरियों का कहना है अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता दिहाइयों में भारत इसराइल के असर रसूख में आकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज अवाम ने कुर्बानी देकर दहशत गर्दी को रोका। अवाम ने अफगान जारहियत की मजम्मत करते हुए पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती किया और कहा आइंदा भी पाकिस्तान कामयाबी से दुश्मन का मुकाबला करेगा। पाकिस्तानी फौज की कार्रवाइयों को अवाम ने मौसर दुरुस्त करार देते हुए जोर दिया कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर सतह पर मुस्तहकम इक़दाम जरूरी हैं। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में भी शहरियों ने पाक फौज के शाना बशाना खड़े हुए और मुल्क के दिफा के अज़म का इयादा किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही क्रैश कर गई। 15,000 पॉइंट्स कमी के बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। मार्केट में कारोबार का आगाज ही 15,000 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी से हुआ। 100 इंडेक्स 1,68,000 से 1,53,000 पॉइंट्स पर आ गया। 100 इंडेक्स और 30 इंडेक्स 10% से ज़ायद गिर गए। KSE 30 इंडेक्स 5 मिनट तक 5% गिरा रहा तो कारोबार रोका दिया जा वजह रहे कि मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस आलमी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टॉक मार्केट्स को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबूधाबी सिक्योरिटी एजेंसी आज और कल बंद रहेंगी। कुवैत स्टॉक मार्केट को भी अगले नोटिस तक के लिए बंद रखने का ऐलान किया गया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बलूचिस्तान में किसान दोस्त प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज। इस सिलसिले में कोयटा में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी समेत आला फौजी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। हुक्काम के मुताबिक दूसरे मरहले में 847 किसानों को 3.2 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए गए, जबकि पहले मरहले में 257 किसानों को 685 मिलियन रुपए दिए गए। नए मरहले में 35,609 एकड़ रकबे पर काश्त के लिए कर्जों की फराहमी मुमकिन बनाई गई। वज़ीर आला ने कहा किसान दोस्त इक़दाम से ज़राअत को फ़रोग़ और बरामदात में इजाफा होगा। किसानों ने बिलासूद कर्जों की फराहमी को खुश आइंद करार देते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।